A very good morning to one and all. This is Pallavi in front of you. Today I am going to explain about the sentence, that is chapter number 1. Students, firstly I want to tell about the sentence. What is the meaning of sentence? Sentence is a group of words. Is called a sentence. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा ग्रुप होता है वर्ड्स का, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. स्टूडेंट्स, मेनली सेंटेंस हैविंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज complete thought and ideas. Second one is having subject and verb, and third one is meaning. Students, let's take example. Suppose blue sky is the. It is a group of words but not having a proper meaning. So now arranging the same words, we get the meaningful sentence, that is the sky is blue. So that is the meaning of a complete thought and ideas. मतलब group of words से नहीं है, उनको जोड़ने के बाद, उनको ऐड करने के बाद, उनको अरेंज करने के बाद एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी बनना चाहिए. That is called a complete thought and ideas. Second one is subject and verb. Sometimes subject is not given in the sentence but is convenient. For example, put the book here. So in this sentence subject is missing but convenient. लेकिन सही लग रहा है, मीनिंगफुल लग रहा है. तो कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और कभी नहीं होता है. थर्ड वन इज मीनिंग. Meaning of any sentence, it may be different. It may be in the statement form, it may be in the question form, it may be in the command form. ये स्टेटमेंट के फॉर्म्स में भी हो सकता है और ये क्वेश्चंस के फॉर्म में भी हो सकता है. तो सेंटेंस पढ़ने के बाद जो मीनिंग होते हैं वो इन टाइप के सेंटेंस पर डिपेंड होते हैं. एक्सक्लेमेशन वो भी हो सकता है. Now come to next topic, that is types of sentence. Students, there are mainly 4 types of sentence. First one is assertive, second one is imperative, third one is interrogative, and fourth one is exclamatory sentence. So firstly we will discuss about the assertive sentence. Next topic, that is types of sentence. There are mainly 4 types of sentence: assertive sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, and interrogative sentence. So come to first one is, that is assertive sentence. Assertive sentence क्या information about anything. यानी assertive sentence जो होते हैं वो किसी भी चीज के होने का या एक्टिविटी का के बारे में बताते हैं. For example, a dog is a man's best friend. Here students, we are telling about that the dog is a best friend of man. यानी यहाँ पे dog को बता रहे हैं कि dog जो है वो man का best friend है. So this is a information. Second one is, the sandwich is very tasty. Here student, we are telling about the information that the टेस्टी सैंडविच, इट मीन्स यहाँ पे सैंडविच के बारे में बता रहे हैं कि जो सैंडविच है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज टू गिव कमांड एंड रिक्वेस्ट. इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम कमांड देते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुट द की इन द ड्रॉर. हमने बोला कि की को ड्रॉर में रखो. इट मीन्स यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं. नेक्स्ट, प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड. अपनी फुटवेयर को बाहर रखो. व्हेनेवर स्टूडेंट्स यू आर गिविंग एनी कमांड एंड आस्किंग फॉर एनी हेल्प एंड रिक्वेस्ट इन दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इंक्लूड इन इम्पेरेटिव सेंटेंस. जब भी आप किसी को कमांड देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं.
Now next one is that is your interrogative sentence. Interrogative sentence always start with WH word. WH word means what, where, when, who. इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के स्टार्टिंग वाले सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव, और हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, इट ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, और इन सेंटेंसेस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, आप कौन हैं. जब भी कोई भी क्वेश्चन में आपसे स्टेटमेंट या सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी के बारे में पूछा जाता है, और स्टार्टिंग में WH वर्ड्स का यूज होता है और एंड जो होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इन शॉर्ट, व्हेनेवर यू आर आस्किंग क्वेश्चन, you are using interrogative sentence. Next one is, that is last one, exclamatory sentence. Exclamatory sentence express the strong feeling and emotions. It means जिस टाइप के sentences में आप अपनी feeling को और emotions को strong करते हैं, that type of sentence is called a exclamatory sentence. For example, what a beautiful day, यानी, और लास्ट में क्या होता है स्टूडेंट, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. तो इस टाइप इसमें आपको क्या शो हो रहा है कि वो डे के बारे में बता रहे हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, अपनी फीलिंग्स को बता रहा है कि वो उसका डे कितना अच्छा गया, तो वो बहुत ही खुश है इसमें. नेक्स्ट इज हाउ लवली द गार्डन इज, इसमें भी वो अपनी फीलिंग्स को बता रहा है कि उसको गार्डन कितना अच्छा लगा. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन विच we use the feeling and the emotions, that's called exclamatory sentence. After completing the explanation of the chapter, come to book exercise. First one is change as directed. आपको जैसे कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है. फर्स्ट वन इज द फैन इज नॉट वर्किंग. इंटेरोगेटिव, स्टूडेंट्स आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है. तो क्या हो जाएगा इसका, इज दिस फैन नॉट वर्किंग. नेक्स्ट इज ब्रिंग मी दैट बुक. ब्रिंग मी दैट बुक को आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो आप डू नॉट का यूज कर देंगे. डू नॉट ब्रिंग मी दैट बुक, नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट का यूज होता है. नेक्स्ट इज दिस विंडो क्लोज. इसको आपको असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में बोलना है. दिस विंडो इज क्लोज्ड. फोर्थ वन इज ही इज टू ओल्ड टू प्ले फुटबॉल. ही इज नॉट टू ओल्ड टू प्ले फुटबॉल. दिस सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव, इसमें आपको नेगेटिव में चेंज करना है. फिफ्थ वन इज डज योर फ्रेंड प्ले क्रिकेट. आपको असर्टिव यानी असर्टिव आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि डज से आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे इसमें, योर फ्रेंड्स प्ले, प्लेज यानी डज है, इट मीन सिंगुलर है, तो आप वर्ब में एस का यूज करेंगे और लास्ट में आपका क्रिकेट रहेगा. सो योर फ्रेंड प्लेज क्रिकेट. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यू हैव टू राइट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो. फॉर एग्जाम्पल, वन, Ratna gave us a lot of trouble. Ratna gave us a lot of trouble. This type of sentence, इसमें सिंपल एक बात कही जा रही है, तो ये आपका assertive sentence हो गया. Help the poor and the needy. हमें ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो ये कैसा हो गया, imperative sentence. Next one is लुक एट द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड पर देखो, इट मीन्स दिस इज ए कमांड. यहाँ पे कमांड का यू इन दिस सेंटेंस वी यूज कमांड, तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया. फोर्थ वन इज एवरीवन शुड ओबे देयर एल्डर्स. हम सभी को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये कैसा हो गया, रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, कमांड की बात कर रहा है, रिक्वेस्ट की बात कर रहा है. तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपके कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. मे यू गेट सक्सेस. भगवान ये आपकी विश दे रहा है वो आपको, और लास्ट में कैसा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, दैट्स व्हाई दिस इज ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नेक्स्ट इज वेयर डू यू लिव. आप कहाँ रहते हैं. देखिए इसकी स्टार्टिंग WH वर्ड से हो रही है और एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क, इसीलिए ये कैसा हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ. नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर से.
जो टीचर कह रहा है उस पर अटेंशन करिए, यानी ये कमांड दे रहा है वो, तो क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। लास्ट इज हाउ कोल्ड द नाइट इज, नाइट कितनी ठंडी है, फीलिंग्स को बता रहा है ना, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अपनी हैप्पीनेस को शो कर रहा है, अपनी खुशी को शो कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। लास्ट वन इज दे डोंट लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में नहीं रहते, नॉट का यूज हो रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।